الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم حاضرین مجلس، پیارے نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، قرآن مقدس کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو آدمی آخرت میں بھلائی کے لیے کوشش کرے گا اور جیسی کوشش ہونی چاہیے اسی طریقے کی کوشش کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اس کی تمام کوششیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قدر ہوں گی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اگرچہ یہ بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس آیت میں 3 شرائط اللہ نے بیان کیے۔ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، عقائد کے حساب سے ہو یا عبادات کے تعلق سے ہو، معاملات کے تعلق سے ہو یا اخلاق و کردار کے تعلق سے ہو، جتنے بھی اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ کیسے معلوم ہو؟ ان آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 شرائط کا ذکر کیا ہے، گارنٹی دی ہے کہ اگر ہمارے اعمال صالحہ ان 3 شرائط کی پابندی کے ساتھ ادا ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال قبول ہوں گے، اور ہمیں جو چیز چاہیے، جس چیز کے لیے ہم نے عمل کیا ہے، جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت ہم کو عطا فرمائے گا۔ اس میں بیان فرمایا گیا کہ سب سے پہلی چیز ہے توحید۔ آدمی اعمال صالحہ کر رہا ہے، لیکن اگر توحید میں شرک کی آمیزش ہو گئی تو آخرت میں آپ کے تمام اعمال جو ہیں وہ کامیابی دلانے میں ممانعت بن جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے۔ آدمی موحد ہو، توحید والا ہو، شرک کی کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اس کے اندر نہ ہو، تو آپ کے سارے اعمال قبول ہوں گے اور جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہایت ہی سنجیدہ اور نہایت ہی شنیع گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اس سے سمجھوتا نہیں کیا، شرک سے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، چاہے بڑا شرک ہو، چھوٹا شرک ہو، کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس
बड़ी भारी भारी गुनाहें हैं, बहुत ज़्यादा गुनाह, कबीरा गुनाह आपने किए हैं, अल्लाह की रहमत हुई तो उसको माफ़ कर देगा, और नहीं तो अगर वो चाहे तो उन गुनाहों के नतीजे में जहन्नम के अंदर डाले, और जितना गुनाह आपने किया है वो तमाम अज़ाबात से गुज़रने के बाद अल्लाह ताला फिर आपको जन्नत में ले आकर के दाखिल कर देगा, अगर आपने शिरक नहीं किया। लेकिन बहुत सारे आपने अमाल किए हैं, गुनाह नहीं किया, ज़र्रा बराबर गुनाह नहीं किया, आपने शिरक कर लिया है तो तमाम अमाल सालिहा पर पानी फिर जाएगा, कभी माफ़ नहीं कर सकता। और ये शिरक अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में इतना बड़ा गुनाह है, इतना कबीह गुनाह है कि अंबिया जो रूए ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला के सबसे महबूब और सबसे प्यारे लोग हैं, तमाम मखलूक़ात में अंबिया की जो मखलूक है, अंबिया की जो जमात है, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे महबूब, इतनी महबूबियत के बावजूद अल्लाह ताला ने उन अंबिया के साथ भी समझौता नहीं किया। जानते हैं सूरह अनाम 8वें पारे में है, आप आयत नंबर 86 से लेकर के आयत नंबर 88 तक पढ़िए। उसमें 18 अंबिया का तज़किरा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, नूह का तज़किरा, लूत का तज़किरा, इसी तरीके से याकूब का तज़किरा, यूसुफ का तज़किरा, इसहाक का तज़किरा, मूसा और ईसा का तज़किरा, दाऊद का तज़किरा, सुलेमान का तज़किरा, पूरा तज़किरा अल्लाह ताला ने 18 नबियों का किया है। आप गिनिए, उसके अंदर 18 अंबिया का तज़किरा किया। कहा क्या है? अंबिया की तारीफ़ की है, ये हमारे बड़े महबूब अंबिया हैं, ये हमारे बड़े ही साले नबी हैं और बड़े बेहतरीन और अमाल सालिहा करने वाले बंदे हैं हमारे, बड़ी तारीफ़ की है, खूब खूब उनको जो है नवाजा है अपनी तारीफ़ात से। और ये बताया कि पूरी दुनिया पर अंबिया कराम की जो फजीलत है और किसी पर नहीं, इनको हमने फजीलत दी। तारीफ़ करने के बाद अल्लाह ताला ने एक जुमला कहा है, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। ये हमारे जो नबी हैं, जो मुरसलीन हैं, जो सालिहीन हैं, सालिहियत के बावजूद भी, अच्छे होने के बावजूद भी, महबूबियत के बावजूद भी, अगर इन्होंने हमारे साथ ज़र्रा बराबर शिर्क कर लिया, ज़र्रा बराबर शिर्क कर लिया, वलो अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, जितना इन्होंने अमल किया सब बर्बाद कर देंगे, सब बर्बाद कर देंगे। ये देखिए शिर्क की सनाअत और उसकी कबाहत। प्यारे नबियों को भी अल्लाह ताला ने वहाँ पे कुछ नहीं समझा, वहाँ समझौता नहीं किया कि हमारे नबी हैं, चलो थोड़ा सा कर लिया तो कोई बात नहीं। और यही नहीं, तमाम अंबिया में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा प्यारे नबी कौन है? आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं और सबसे ज़्यादा महबूब आपको अल्लाह तबारक व तआला को सबसे प्यारे हैं। और बहुत सारी तारीफ़ात अल्लाह ताला ने आपकी की है, यहाँ तक कि आप जानते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे तो आपकी ये ख्वाहिश होती थी कि जो काबा पहला किबला अल्लाह ने बनाया है, मदीना में आपने 14, 15 या 16 महीने तक या 17 महीने तक आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ी थी, हुक्म यही था। लेकिन दिल में यह था कि काश अल्लाह तबारक ताला पहले किबले की तरफ फेर देता। तो अल्लाह ताला ने उनकी जो ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश की इज्जत रख ली। जानते हैं अल्लाह ने क्या फरमाया कि ऐ मेरे महबूब फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, आपकी खुशी के लिए, आपकी रज़ा के लिए हम किबला बदल देते हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, हमने आपकी खुशी के लिए, आपकी रज़ा के लिए किबला को बदल दिया है, यानी इधर आप मुँह करके आप नमाज़ पढ़िएगा। इतने महबूब नबी हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबियत के बावजूद भी आपसे अल्लाह तबारक व तआला ने समझौता नहीं किया। सूरह ज़ुमर खोलिए और उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लइन अशरकत लयहबतन अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ मेरे प्यारे महबूब नबी, आप भी अगर मेरे साथ शिर्क कर लें ज़र्रा बराबर, लयहबतन अमलुका, आपका अमल सब बर्बाद हो जाएगा,
वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप घाटा उठाने वाले में से हो जाएंगे। अब बताइए, इतने महबूब नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनको मेराज में बुलाया और क्या क्या जो है उनके साथ अल्लाह तबारक ताला ने उनकी तकरीम और उनकी ताज़ीम नहीं की, लेकिन शिर्क के मामले में समझौता नहीं किया। कह दिया कि आप भी अगर शिर्क करेंगे तो आपका अमल बर्बाद हो जाएगा। तो अंबिया तो शिर्क को मिटाने के लिए आए थे, उनसे शिर्क मुमकिन नहीं। लेकिन ये बात सिर्फ इसलिए कही गई है कि लोगों को डराया जाए कि शिर्क कितना ख़तरनाक है, शिर्क कितनी यह हलाकत खेजी वाली चीज़ है, लोग रुक जाएं शिर्क। और कुरान में एक जगह आया हुआ है शिर्क के बारे में, अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, कि जो लोग ईमान ले आए और अपने ईमान में ज़र्रा बराबर भी जुल्म की आमेजिश नहीं की, जुल्म नहीं मिलाया। यहाँ पे जुल्म कहा गया शिर्क को। और जुल्म किसको कहते हैं? जुल्म हम लोग जैसे अपने माहौल में जुल्म जानते हैं, किसी को मार दिया, किसी का जो है हक गज़ब कर लिया, या किसी के ख़िलाफ़ कोई और बात करती, ये जुल्म है, ये आम तौर से। लेकिन शरीयत की निगाह में कुरान की इस आयत के अंदर जो है जुल्म का मतलब ये हुआ कि जैसे वदउस्से इला गैर महल्ली, अरबी में कहा जाता है कि कोई चीज़ जहाँ के लिए हो वहाँ न रख करके दूसरी जगह रख दिया जाए। जैसे टोपी सर पे पहनने के लिए है, हमने टोपी को पैर में रख दिया, जूता पैर में पहनने के लिए है, जूता उठा के सर पे रख लिया, तो ये जुल्म हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात क्या है? इबादत के लायक है। उसकी इबादत के साथ किसी को मिला लिया जाए, किसी को शरीक कर लिया जाए, या उसको छोड़ करके किसी दूसरे को पूजा जाए, ये निहायत सबसे बड़ा जुल्म है। यही बात कही गई कि जो लोग ईमान ले आए और अपने ईमान में जुल्म की यानी शिर्क की मिलावट नहीं की, उलाइका लहुमुल अम्न, ऐसे ही लोग को शांति मिलेगी, ऐसे ही लोगों को अमन व अमान मिलेगी, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और फरमाया गया वहुम मुहतदून, उनको गारंटी दे दी गई, ये हिदायत याबी इन्हीं के लिए है, हिदायत याब लोग हैं, ये हिदायत पर चलने वाले लोग हैं, यानी जिनका ईमान शिर्क की आमेज़ी से ज़र्रा बराबर भी शिर्क नहीं होगा, खालिस ईमान वाला होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक हिदायत वाला है, उसको हिदायत मिल गई। और शफाअत भी उसी को मिलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको किताबुल ईमान में ज़िक्र किया है। बड़ी बेहतरीन हदीस है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सिफ़ात के तल्लुक़ से, सिफ़ात जिसे हम लोग समझते हैं हर अरे गहरे नथु खैरे सबकी सिफ़ात हो जाएगी, मरेंगे अल्लाह के रसूल का दामन पकड़ कर लटक जाएंगे और क्या क्या करेंगे। हर आदमी जो है चीखता हुआ और पुकारता हुआ चला जा रहा है। दुनिया में उल्टे सीधे काम करो, अब मरो और हुजूर का दामन पकड़ लो, जन्नत मिल जाएगी, शिफात मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें साफ कर दिया है कि शिफात किसकी होगी। आप फरमाते हैं कि लिकुल्लि नबीन दावतुन मुस्तजाबा, हर नबी को एक ऐसी दुआ दी गई थी कि जब वो मांगेगा अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेगा। हर नबी को एक दुआ दी गई, मुस्तजाब दुआ, जब भी वो नबी मांगेगा फ़ौरन कबूल हो जाएगी। लिकुल्लि नबीन दावतुन मुस्तजाबा फ़तअज्जल कुल्लु नबीन दावतहु, हर नबी ने उस दुआ को दुनिया में मांग लिया। जितने नबियों को दी गई थी वो दुआ दुनिया में सब नबी ने मांग लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वइन्नी इख्तबा तो दावती, मैंने नहीं मांगा दुनिया के अंदर, चाहते तो मांग लेते अपने घर खानदान वाले के लिए, फ़ौरन कबूल हो जाती, लेकिन मांगा नहीं। इन्नी इख्तबा तो दावती, मैंने अपनी दावत अपनी दुआ को छुपा के रखा, किस लिए? शफ़ाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामा, क़यामत में अपनी उम्मतियों की शफ़ाअत के लिए उस दुआ को बचा के रखा हूँ। दुनिया में नहीं मांगा मैंने, आखिरत में जब अल्लाह के बंदे मेरे उम्मती जो जहन्नम में अपने गुनाहों की वजह से गए होंगे और शिर्क नहीं किया होगा, उनके लिए मैंने उस दुआ को बचा के रखा हूँ, उस दिन मांगूंगा। बुखारी शरीफ की एक लंबी हदीस है, मैदान महशर होगा और तमाम लोग परेशान होंगे, गर्मी से परेशान, कोई जो है हदीस में आता है कोई सर तक जो है पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई नाक तक डूबा होगा, कोई गर्दन तक डूबा होगा, कोई नाप तक डूबा, यानी हर आदमी परेशान, वो आलम होगा। तमाम लोग दौड़े हुए हज़रत आदम के पास जाएंगे
कि बाबा आदम आप कुछ कीजिए, आपकी हम औलाद हैं। हज़रत आदम कहेंगे कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, तुम नूह के पास जाओ। लोग नूह के पास आएंगे, हज़रत नूह भी इनकार कर देंगे। उसके बाद हज़रत इब्राहिम के पास, इस तरह से आते 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 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। तो आपके बारे में आता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे में गिर जाऊंगा, सजदे में गिर जाऊंगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहेगा इरफा रासक सल तोता, आप उठाइए, अपना सर उठाइए, मांगिए क्या मांगते हैं। इशफा तो सफ़ा, और सिफात कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल होगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं सर उठा करके सिफात करूँगा। किसकी? आपने फरमाया कि मैंने वो दुआ बचा के रखी है अपनी उम्मत की सिफात के लिए। आप फरमाते हैं उसके बाद फ़हिय नाइलतुन इंशाअल्लाह, ये दुआ ज़रूर पहुँचेगी, ज़रूर कबूल होगी अगर अल्लाह ने चाहा तो। देखिए अल्लाह की रज़ा की तरफ फेर दिया, अपने को नहीं कहा कि मैं सिफात कर लूँगा, क्या ये दुआ ज़रूर पहुँचेगी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। मिन मम्मात मिन उम्मती, हर उस शख्स को मेरी दुआ लगेगी जो मेरी उम्मत का कोई आदमी इस हाल में दुनिया से गया होगा, ला युशरिक बिल्लाहि शैआ, ज़र्रा बराबर वो अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया होगा, उसके हक़ में मेरी शफाअत होगी। अब बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि दामन पकड़ के झूल जाएंगे और हुजूर की शफाअत पा जाएंगे, और आमाल देखो तो शिरकिया भरे पड़े हुए हैं, इस हदीस से तो खारिज हो गए वो लोग। ऐसे लोगों की शफाअत अल्लाह के नबी नहीं फरमाएंगे जिनके ईमान के साथ साथ शिरक की मिलावट भी दोनों होगी। खालिस ईमान वाला आदमी होगा, ज़र्रा बराबर भी शिरक नहीं किया होगा, हुजूर उसकी शफाअत करेंगे। ये जो है तौहीद की अज़मत है और शिरक की कबाहत। और हर नबी ने अपने उम्मतियों को अपने दौर में जो दावत दी है, तौहीद की दावत दी है, शिरक से रोका है। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने जगह जगह हर नबी के साथ मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, ऐ लोगों तुम्हारे लिए कोई अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है, बस वही एक माबूद है। और वसीयत भी की है कि तुम लोग जो है शिरक से बचे रहना, अल्लाह की वहदानियत को पकड़े रहना। अंबिया तक को डर है कि हमारी औलादें जो है कहीं बहक न जाएं और शिरक न करने पाएँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मरते वक्त अपने औलादों को बुलाते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जानते कितनी थी? 12 औलादें थीं। 10 औलादें उनकी एक बीवी से और 2 औलादें जिसमें हज़रत यूसुफ और हज़रत बिन्यामीन, ये एक दूसरी माँ से थे। उन बच्चों को बुलाते हैं अपने, यानी इंतकाल का वक्त करीब है, और बच्चों को बुलाते हैं तो वसीयत करते हैं। क्या कहते हैं? फ़िक्र किसकी है कि कहीं ये औलाद आगे चल कर के शिरक में न मुब्तला हो जाए। नबी को फ़िक्र हो रही है, जबकि दादा भी नबी हैं हज़रत इब्राहीम, और बाप भी नबी हैं हज़रत इसहाक़, ख़ुद हज़रत याकूब नबी, उनके बेटे यूसुफ नबी, पूरा घराना नबूवत का है। लेकिन डर लगा हुआ है कि मेरे औलाद कहीं मेरे बाद आगे शिरक न करने लगे। अपनी औलादों को जमा करते हैं, पूछते हैं मा ताबुदून मिन बादी, है मेरे बच्चों मेरे मर जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मा ताबुदून मिन बादी। तो बच्चे जवाब देते हैं नाबुदु इलाह का व इलाह आबाई का इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। अब्बा जान आप टेंशन न लें, आपके जाने के बाद हम आपके माबूद और आपके बाप दादा के माबूद, इब्राहीम जो बाप दादा हैं, इसहाक़ हैं, इस्माईल हैं, इनका जो माबूद है उन्हीं की पूजा करेंगे, उसी की इबादत करेंगे। इलाहन वाहिदा, एक ही माबूद को मानेंगे। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम मुसलमान रहेंगे, आप फिक्र न करें। यानी उनसे कौलो इकरार लिया। अब बताइए, एक नबी को अपने घराने में शिरक फैल जाने का डर है, तो आज के फितना परवर या पुरफितन दौर में हर जगह फितना, हर जगह फितना, नया नया फितना रोज़ आना, ईमान बचाना मुश्किल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है कि एक वक्त ऐसा आएगा, यही वक्त है, आपने कहा 1400 साल पहले कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग सुबह करेंगे तो मुसलमान होंगे, शाम करेंगे तो काफिर हो जाएंगे। इस तरीके से लोगों का ईमान
बिगड़ चुका होगा, शको शुबहात की दुनिया में आ चुके होंगे कि सुबह कुछ बात कर रहे हैं, शाम को होते 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 दूसरी नज़रिए पे आ जाते हैं। आज यही माहौल है। चार आदमी जहाँ बात कर रहे हैं, कुछ अपने ही में फतवा दे रहे हैं, अपने ही में सवाल जवाब दुनिया भर का, और उसके बाद जो है क्या होता है, नहीं मैं तो इसको मानता हूँ, यही अकल वाली बात है, ये सब लोग उसकी तरफ चले जाते हैं। तो फितने के ज़माने में हम तो अपनी औलादों से मामून नहीं रह सकते। हम ये ना समझे कि हमारे घर में नमाज हो रही है और इबादत हो रही हैं और अकायद भी अच्छे हैं और मामलात भी अच्छे हैं और अखलाक व किरदार भी अच्छे हैं, हम नमाजी हैं तो हमारे जो बच्चे हैं ये भी नमाजी रहेंगे और कोई फ़िक्र की बात नहीं। हम मामून नहीं रह सकते। हम उनको यानी वक्फे वक्फे से, लम्हे लम्हे से खुदा की बात को समझाएं, तौहीद को समझाएं, शिर्क की कबाहत और उसकी हलाकत खेदी पर उनको बार बार समझाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके के प्रोग्रामात आप लोग जो कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन चीज़। जो ये बच्चे हाजिर हैं, यहाँ से बात सुनेंगे तो उनके दिमाग में बैठेगी, ये दूसरों को भी बताएंगे। इस तरीके से हमारी आने वाली नस्ल जो है आज के पुरफतन दौर में फितनों में पड़ने से बची रहेगी इंशाअल्लाह। आप बताएं, मैं बताऊं आपको कि देखिए हम मामून क्यों नहीं रह सकते। आप जानते होंगे जो लोग टीवी वगैरह या ये कि मोबाइल पर जो ख़बरें सुनते हैं सोशल मीडिया पर, एक फ़िल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा नगमा निगार है जावेद अख्तर। बहुत से लोग जानते होंगे, अभी उसका जो है मुनाजरा भी हुआ है एक मौलाना से। वो मुल्हिद आदमी है, अल्लाह के वजूद को नहीं मानता, अल्लाह कुछ नहीं। अल्लाह जब कुछ नहीं तो रसूलुल्लाह कैसा और किताबुल्लाह कैसी है और आखिरत और ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही दुनिया हो गई। उसका नज़रिया यही है। ये भटका कैसे? इसके दादा परदादा में 2-3 पीढ़ियों में बड़े बड़े आलिम गुजरे, जानते हैं? इसके जो परदादा के बाप हैं फजले इमाम, अंग्रेज़ों की हुकूमत में सदरुस सदूर थे, बहुत बड़े आलिम, कुरान के और हदीस के बड़े आलिम थे। और आज तक जो है अरबी मदारिस में एक किताब पढ़ाई जाती है फ़ारसी की आमदनामा, वो हम लोगों ने भी पढ़ी। ये उसी आदमी की लिखी हुई है, फजले इमाम की। बहुत बड़े आलिम थे। उनके बेटे फजले हक खैराबादी, सुल्तानपुर वाला खैराबाद, फजले हक खैराबादी 1857 की जंग आज़ादी में शरीक हैं, आलिम दीन हैं, कुरान के आलिम हैं, हदीस के आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम। उनके लड़के हैं मुस्तर खैराबादी। अब यहाँ से मुस्तर खैराबादी जो है अब नए ज़माने में आ गए, यानी ये शायर भी थे और कुछ नए तरीके को देख करके नई ज़िंदगी बिताने का उनके अंदर जो ख्याल पैदा हुआ तो उसी ज़िंदगी में आ गए। वहाँ 3 पीढ़ियाँ ठीक रहीं। मुस्तर खैराबादी के जो लड़के हैं जानिसार अख्तर, इसकी तरबियत नहीं हो पाई। मुस्तर खैराबादी अपनी शायरी में और अपने कामों में वो मशगूल रहे, जिसकी वजह से उस जानिसार अख्तर बेटे की तरबियत नहीं हो पाई। माँ बाप ने उनकी तरबियत नहीं की। लिहाजा क्या हुआ, जदीद दौर के फितनों ने उनको पकड़ा और फिर वो सोशलिस्ट हो गए, कम्युनिस्ट हो गए। और शायरी किया उन्होंने, फिल्मी गाने उन्होंने भी लिखे। और उसके बाद जो है उनके जो बेटे हैं जावेद अख्तर, अब हुआ क्या था, जानिसार अख्तर जो थे इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। बीवी चली गई अपने घर और बाप अपने घर। अब बेटा इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रहा है। जावेद अख्तर जो है इधर उधर की ठोकरें खाते खाते अब क्या हुआ, कोई तरबियत नहीं, कोई देखभाल नहीं, कोई दीनी माहौल नहीं, ले दे करके क्या हो गए, मुल्हिद हो गए, वही जावेद अख्तर। तो मामून नहीं रह सकते हम अपनी औलादों के। जब तक हम उनकी तरबियत करते रहेंगे अल्लाह तबारक ताला साथ देता रहेगा। अगर हमने छोड़ दिया तो शैतान लगा हुआ है, वो खींच करके शिर्क में मुब्तला कर देगा, यहाँ तक कि अल्लाह के वजूद से इनकार कर देगा। अल्लाह कोई चीज़ नहीं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने साथ साथ अपनी औलादों को भी दीनी मिजाज पैदा करें और दीनी किताबों का मुताला करने की उनको जो है लगन पैदा करें उनके अंदर, और इस तरीके के प्रोग्रामों में खींच करके लाएं। हाँ, दुनियावी तालीम जो दे रहे हैं वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दीन नहीं निकलना चाहिए। आप जा रहे हैं अकेले नमाज़ पढ़ने, आपके बच्चे अपने घर के अंदर हैं, ये ठीक नहीं है। आप ले जाइए, आपकी ज़िम्मेदारी, तरबियत ऐसे होगी साथ साथ। तो शिर्क जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आमाल सालिहा में शिर्क शामिल हो गया तो बख्शिश नहीं होगी, जन्नत नहीं मिलने वाली।
یہ ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے، جو اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں وہ منمانی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے جی میں آ رہا ہے، یہ اچھا لگ رہا ہے، ہم کر لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسوہ ہے، آئیڈیل ہیں آپ نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کہا ہے، جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری ہے، وہ تمام طریقہ ہم کو لے لینا ہے، جو آپ کہیں اس کو لینا ہے، جس سے منع کر دیں اس سے رک جانا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر میں فرمایا گیا رسول جو تم کو دیں اس کو لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، یہی طریقہ ہونا چاہیے، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، نماز روزے کا معاملہ ہو، یا یہ کہ اخلاق و کردار کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، تمام اعمال صالحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے دائرے میں ہوں گے۔ اگر حضور کے طریقے کے دائرے سے اگر ہمارا عمل نکلا ہوا ہے تو دنیا کی نظر میں چاہے لاکھ بہتر ہو، لیکن وہ قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتا۔ رسول بھیجا ہی اس لیے گیا، اس کو آئیڈیل بنایا گیا کہ یہ جو کام کرے اسی کی روشنی میں آپ کو کرنا ہے، اس سے باہر نہیں کرنا۔ اس کی اہمیت صحابہ کرام نے سمجھی، بعد کے تابعین نظام نے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مدینہ میں ایک آدمی کو دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر اس نے نہا دھو کر کے احرام پہنا، اور مسجد نبوی کے اندر اس نے یہ سوچا کہ مسجد نبوی سب سے مبارک جگہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یہاں نماز پڑھنے کا 1000 ثواب ملتا ہے، یہیں سے ہم احرام باندھیں گے۔ تو اس نے وہیں سے احرام باندھا اور تلبیہ پکارنے لگا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہیں مدینہ ہی میں رہتے تھے، اتفاق سے وہ بھی وہیں موجود تھے۔ اس کو بلایا، سنو سنو سنو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تکبیر پکار رہا ہوں، احرام باندھا ہوں۔ کہا کہ احرام باندھے ہو؟ کیسا احرام؟ کا عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ تمہارا عمرہ نہیں ہوگا، کیوں؟ تم نے یہاں سے کیوں باندھا؟ کہا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس مسجد ہے، آپ اسی میں نماز پڑھائے اور یہیں آپ کا انتقال بھی ہوا، اس سے بہتر جگہ کیا ہے؟ مسجد حرام کے بعد اس کی دوسرا نمبر اس کا ہے، میں یہیں سے احرام باندھوں تو اور زیادہ فضیلت ہوگی، اور زیادہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوگا۔ کہا غلط، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ نے جہاں سے احرام باندھا وہیں سے باندھو گے تو تمہارا حج عمرہ ہوگا۔ تم مسجد نبوی سے اپنے منمانے طریقے سے یہاں پہ احرام باندھو گے، احرام نہیں ہوگا۔ ذوالحلیفہ جاؤ، جس کو آپ یار علی بولتے ہیں، مدینہ جانے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جو میقات مقرر ہے مدینہ میں، ذوالحلیفہ، آج کل اب یار علی بولتے ہیں، 10-15 کلومیٹر دور مدینہ سے وہاں پہ بنا ہوا ہے۔ وہاں جا کر کے آدمی نہاتا دھوتا ہے اور اس کے بعد احرام کا کپڑا پہن کر کے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے، لبیک عمرتن یا لبیک حجن کہہ کر کے وہاں سے تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ جاتا ہے۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول کا تھا۔ انہوں نے سمجھایا کہ یہاں سے چاہے مقدس کتنی بھی جگہ ہو، اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، آپ نے اپنی مسجد سے کبھی احرام نہیں باندھا ہے، جہاں سے باندھا ہے، جو میقات بتائی ہے وہیں سے باندھو گے، تبھی تمہارا حج عمرہ ہوگا، تمہاری عبادت ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو دیکھا، فجر کی نماز ابھی نہیں ہوئی تھی، 4-5 منٹ 10 منٹ باقی تھا۔ اب اس آدمی کو دیکھا کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھ کر کے، سنت پڑھ کر کے بیٹھا، پھر اس کے بعد پھر اٹھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر اٹھا، پھر سنت پر سنت، سنت پر سنت پڑھے جا رہا۔ سعید بن مسیب نے اس کو بلایا، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ یہ نماز تمہاری صحیح نہیں ہے۔ کہا رہے آپ سعید بن مسیب ہیں کیا؟ بولے ہاں۔ کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں تمہاری نمازیں نہیں ہوئی۔ کہا ہاں بالکل صحیح بات، حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فجر کی نماز سے پہلے صرف 2 رکعت پڑھی ہے، 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ جاؤ، اب کوئی رکعت پڑھنا نہیں، ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے، بس 2 رکعت پڑھو، جتنی رکعتیں تمہاری ہوں گی سب بیکار ہو گئی، حضور کی سنت یہی۔ تو اس نے پھر جو ہے اس دن سے کرنا بند کر دیا۔ تو سنت یعنی طریقے رسول کا اتنا اہتمام لوگوں کے اندر تھا، اتنا جذبہ تھا کہ رسول کا طریقہ ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کوفہ کے اندر گئے، مسجد میں دیکھا کہ ایک جماعت آئی ہوئی ہے، تو تمام لوگ جو ہے بیٹھ کر کے، بیچ میں ایک امیر بیٹھا ہوا ہے اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کنکڑی لیے ہوئے ہیں،
जो अमीर है वो एक कंकड़ी उठाता है, सुभान अल्लाह कंकड़ी रख देता है। तमाम लोग एक एक कंकड़ी पर सुभान अल्लाह एक एक कंकड़ी रखते जाते हैं, सुभान अल्लाह। यानी कंकड़ियों जैसे हम लोगों के यहाँ चना पढ़ा जाता है, तो उसी तरीके से वो एक कंकड़ी उठाते सुभान अल्लाह, दूसरी उठाते सुभान अल्लाह, तीसरी उठाते सुभान अल्लाह, ऐसे ही गिन रहे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये बताओ ये इसमें का अमीर कौन है? कहा ये बीच में जो बैठे हुए ये साहब हैं। उनको बुलाया, इधर आओ, ये तरीका जो तुम लोगों ने राइज कर रखा है ये क्या तमाशा है? उन्होंने कहा अरे हरी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो हम कह रहे हैं, कोई गलत बात तो कह रहे हैं, अल्लाह का तज़किरा कर रहे हैं, अल्लाह की याद कर रहे हैं। कहा ये तरीका तुम अल्लाह की याद करो, चाहे सुभान अल्लाह कहो, लाखों मरतबा कहो, करोड़ों मरतबा कहो, नाकाबिल कबूल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है कभी? अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता पुराना नहीं हुआ, आपके कपड़े पुराने नहीं हुए, यानी अभी आपके इंतकाल के ज़्यादा दिन नहीं हुए कि बिदअत शुरू हो गई तुम लोगों की। उन लोगों को मस्जिद से खदेड़ के भगा दिया, कहा कि बिदअत का काम करने वालों को मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, उन्होंने वहाँ से भगाया। तो सुन्नत का इतना अहतमाम होता था। अब आप देख लीजिए हमारे हिंदुस्तान में ख़ास तौर से हम लोगों का जो माहौल है, और बिलखुसूस आज का जो महीना चल रहा है, शाबान का जो महीना है, बिलखुसूस बहुत सारी बिदअत खुराफात दीन के नाम पर गढ़ ली गई हैं और उसको रवाज दे दिया गया है। अच्छे घराने के लोग, अच्छे अकायद के घराने के लोग भी मुतदलदल हैं, उनका भी ईमान इधर उधर हो रहा है। अच्छा तो कर रहे हैं, बहुत से लोग आ जाते हैं। जो माहौल चलता है, अगर तबलीग ना हो और उसकी काट छाँट ना हो तो आदमी उस अकीदे में, उस रौ में बढ़ जाता है, वो भी मानने लगता है सही बात तो सही है, अच्छी बात लग रही है ना। शब बारात के मौके पर जो सजाया जाता है और इसे हलवा वगैरह पकाया जाता है, और जो अकायद रखे जाते हैं, या ये कि 15वीं शाबान को कब्रों की जो ज़ियारत की जाती है, अच्छी बात तो है। उसी बहाने साल में एक मरतबा कब्र का यानी कब्रिस्तान में जाना भी हो जाता है माँ बाप की। बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, इस मौके पर चले जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हाँ में हाँ मिलाने वाले मिल जाते हैं अपने लोगों में से, लेकिन उनको बताया जाए कि ये तरीका गलत है। अब अकायद क्या है? शब बारात के मौके पर मुख्तसर तौर से मैं बता दूं, शब बारात के मौके पर क्या लोग करते हैं आप सब लोग जानते हैं। अकीदा क्या है कि रूहें आती, रूहें यानी बाप दादा जो मर गए उनकी रूहें आती हैं, और उनके लिए अच्छा से अच्छा खाना बनाया जाता है, हलवा वगैरह बनाया जाता है, और उनके लिए जो है पेश किया जाता है, और दलील दी जाती है। उनके उलमा ने उनको सिखा रखा है। देखो दलील क्या है, कितनी जहालत वाली बात है। अवाम जो है बिल्कुल बेचारी जाहिल है, वो अंधी बहरी अवाम, उनको गुमराह करने वाले ये उनके उलमा हैं। क्या कहते हैं? दलील है, वो पढ़ते हैं सूरह क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। ये तो कुरान में आया हुआ रूह, फरिश्ते आते हैं, रूह भी आती है। अब उसका तर्जुमा इस तरीके से करते हैं कि देखो यहाँ पे है ना कि रूह आती है, तो रूहें तो आती हैं, जबकि मतलब उसका ये है। अब वो सीधी सादी अवाम उलमा के बहकावे में आ जाती है, वो मान जाते हैं हाँ बिल्कुल ये रूह का तज़किरा तो है, रूह तो आती है। यहाँ पे रूह का मतलब क्या है? फरिश्ते आते हैं, ये शब क़द्र की बात है। रमज़ान के अंदर जो आखिरी 5 अय्याम होते हैं, 5 रातें होती हैं, वो शब क़द्र की, उसकी बात है कि वहाँ फरिश्ते आते हैं। इतनी मुअज़्ज़म रात है और इतनी तकरीम वाली रात है कि फरिश्ते आते हैं, रूह आते हैं। रूह का मतलब रूहुल अमीन हज़रत जिब्रील का लक़ब है। फरिश्ते आते हैं अलग से, क्या हज़रत जिब्रील फरिश्ता नहीं है? वो भी फरिश्ता है, लेकिन उनको अलग से जिक्र किया गया रूह कह करके, इसलिए कि वो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। तो जिसमें हज़रत जिब्रील आ गए, अकेले आए चाहे फरिश्तों के साथ आ जाएं, वो समझिए कि वो पूरी मजलिस बरकत वाली हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर से जलसा होता है तो हम लोग ऐलान करते हैं बहुत बड़े बड़े मौलाना आ रहे हैं, फलां साहब आ रहे हैं, फलां साहब आ रहे हैं, फलां साहब आ रहे हैं, और एक मशहूर आलिम का नाम ले लीजिए, जैसे मिसाल के तौर से मौलाना जर्जीस भी आ रहे हैं, या मेराज रब्बानी आ रहे हैं। तो मेराज रब्बानी भी तो मौलाना है, जर्जीस भी तो मौलाना है, लेकिन क्या है कि ये लोग ज़रा मुकर्रिरों में सबसे बड़े माने जाते हैं। वही तज़किरा है कि फरिश्ते आते हैं, जिब्रील भी आते हैं। अब यहाँ पे रूह का मतलब इन लोगों ने देखा माँ बाप की जो रूह हैं वो आती हैं, वो मान जाते हैं कि देखो रूह तो आती है, आप कैसे कहते हो कि रूह नहीं आती। इसी तरीके से कि जो
قبروں کی زیارت کے بارے میں 15ویں شعبان کو قبروں کی زیارت کی جاتی ہے خاص طور سے. یہ بھی غلط ہے. قبروں کی زیارت تو آدمی روزہ نہ کرے, کوئی خاص دن نہ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے. اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اللہ میں اپنی ماں کی بخشش کی دعا کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. مسلم شریف کی روایت ہے. تو پھر اس کے بعد کہا کہ کیا میں ان کی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں قبر کی زیارت کر سکتے ہو, لیکن بخشش کی دعا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ کفر پہ ان کا انتقال ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے تھے اور اس کے بعد جو ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. صحابہ اکرام بھی پاس میں تھے, ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے. اس کے بعد آپ نے کیا کہا کہ زور القبور, قبروں کی زیارت کرو, قبروں کی زیارت کرو. فإنها تذکر الآخرہ, اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی. تو قبروں کی عام زیارت کرنا ہے. کوئی خاص دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منایا کہ شب برات کو یا اس رات کو جا کر کے خاص طور سے جو ہے جا کر کے قبروں کی زیارت کیا جائے اور اس کو سجایا جائے. اچھا, آخرت یاد کہاں آئے گی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ آپ قبر کے پاس جا کر کے اتنا روتے تھے کہ لوگوں نے سوال کیا آپ دوسری چیزیں سن کر کے آپ اتنا آنسو نہیں بہاتے جتنا قبر کے سامنے آپ آ کر کے روتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ پہلی منزل ہے اور یہ ویرانگی, آدمی کو یہیں آنا ہے. تو آدمی ویران جگہ دیکھ کر کے جا کر کے وہ اس کا دل دہل جاتا ہے کہ یہیں ہم کو آنا ہے. اب جہاں اس طریقے کی چیزیں, جہاں خوب چراغاں ہو اور پھولواری ہو اور دنیا بھر کی چیزیں ہوں, وہاں دیکھ کر کے کس کو جو ہے آخرت یاد آئے گی سوائے دنیا کی؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. جبکہ شب شعبان کے تعلق سے 2 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے جس سے شعبان کی فضیلت ہوتی ہے. ایک چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ کثرت سے رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کبھی بھی کسی مہینے میں آپ نے پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا, اور شعبان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں کثرت سے اتنا روزہ نہیں رکھا. یعنی شعبان میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ آپ جب روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے تو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ آپ افطار نہیں کریں گے. اس کے بعد جو ہے آپ افطار کرنے یعنی نہیں رکھتے تھے. 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن ایسے آپ جو ہے لگاتار کئی دن تک افطار ہی میں ہیں, روزہ نہیں رکھتے تھے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لگتا ہے آپ روزہ نہیں رکھیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ پہلی سے رکھا 2 دن 3 دن 4 دن, پھر اس کے بعد 5 6 سال یہ سب چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد آپ نے رکھنا شروع کیا تو 15 تاریخ آ گئی, 14 اور 15 اس میں بھی آ گئی رکھنے میں. تو اس طریقے سے وہ سلسلہ بنا رہتا تھا آخر تک. تو یہ 2 فضیلتیں ہیں. ایک فضیلت روزہ رکھنے کی, ایک فضیلت یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں تاکہ روزے کی حالت میں اللہ کے ہاں میرے اعمال پہنچے. تو یہ 2 فضیلتیں شعبان کی آتی ہیں. اس کے علاوہ حدیث میں کہیں بھی کسی طریقے کی کوئی فضیلت شعبان کے تعلق سے نہیں ہے. اور جتنی جو خرافات و بدعات ہیں سب احادیث کے اندر اس کا رد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس فیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس کے اندر ہمارا کوئی حکم نہیں ہے, ہمارا کوئی قول نہیں ہے, ہماری مہر نہیں ہے, تو وہ مردود ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ سنت کے طریقے پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمارے اعمال ہوں گے تو یہ ہمارے جو ہے کامیابی کے ضامن ہوں گے. تیسری چیز, جو اعمال صالحہ ہم کر رہے ہیں وہ خلوص و للہیت پر مبنی ہوں, ریاکاری پر نہیں ہونا چاہیے, دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور سے ہم لوگ یہ جو درس کی مجلس لگاتے ہیں, اگر اس درس کی مجلس کو چلانے کے لیے ہمارے دل کے اندر ریاکاری آ گئی, دکھاوا آ گیا, سناوا آ گیا کہ ہماری واہواہی ہو, ہماری شہرت ہو, ہماری لوگ تعریف کریں, یہ چیز جو ہے خلوص کے بالکل الٹ ہو جائے گی. آپ کی تعریف ہو جائے گی, آپ کو دولت مل جائے گی, شہرت مل جائے گی,
سب کچھ آپ کو مل جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب نام کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے جو بھی کام ہو، جو بھی عمل ہو، ریاکاری کے علاوہ ہونا چاہیے، خلوص للہیت پر مبنی ہو، اللہ کا تقوی، اس کی للہیت، اس کے خلوص محبت کے ساتھ عمل ہو، ورنہ سب بیکار ہو جائے گا۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید الآخرۃ یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو آدمی دنیاوی زندگی چاہتا ہے، نیک اعمال کر کے دنیاوی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی شہرت چاہتا ہے، اس کی دولت چاہتا ہے، ناموری چاہتا ہے، اس کی زیبائش اور آرائش چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم دنیاوی زندگی میں اس کو شہرت بھی دے دیں گے، دولت دے دیں گے، ناموری دے دیں گے، سب کچھ دے دیں گے، لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں آنے کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے اس نے جو کچھ کیا ہے سب دنیا کے لیے کیا ہے، آخرت میں نجات پانے کے لیے نہیں کیا، سوائے آگ کے اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور جتنا عمل کیا ہوگا اللہ نے فرمایا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو کچھ نیک عمل کیا ہوگا سب برباد کر دیں گے، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ کر رہا ہوگا وہ سب کی سب باطل ہو جائے گا۔ یہ سزا ہے، یعنی کوئی نیک عمل کرے اور ریاکاری کے ساتھ کرے، ارادہ ہو، اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ دیکھیں ہم کو، ہم بڑے نمازی ہیں، بڑے حاجی ہیں اور بڑے جو ہے عمل صالحہ کرنے والے ہیں، ہماری شہرت ہو، ہمارا نام ہو، تو ان کو دنیا میں مل جائے گا، اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا سوائے آپ کے۔ تو یہ اگر خلوص ہے، للہیت ہے، توحید ہے، سنت پر عمل ہے اور خلوص و للہیت ہے عمل میں، یہ تینوں چیزیں ہم کو آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیں گی۔ اس لیے جو بھی کام کیا جائے، جو بھی عمل کیا جائے، یہ تین شرائط کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے کی مجلسیں جمانے اور اس کو استقامت برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔